the last week we start about the laser physics, right? So today we continue our lecture regarding the laser physics. So before starting today class, I would like to give a brief introduction about the previous lecture, which I give in the previous week. I told you that laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation, right? And this stimulated emission is the main principle of laser. कि आपका जो laser है, it based upon this phenomena stimulated emission, and this principle itself lies in its full form. कि आपका जो laser का जो abbreviation है, उसके अंदर ही ये S और E का जो term है, it include its principle stimulated emission. After that, I discuss about the property of laser beam. Ki suppose we have two sources of light. We have two sources of light. ये screen दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Okay, all right. Just a minute. Okay, all right. Suppose you have one ordinary source of light and another source you have laser beam. So what are the main property of laser source that separate this laser source from the ordinary source? तो वो चार property हमने discuss की थी. First was the degree of coherence कि आपका जो laser beam है, it has high degree of coherence. And what is the meaning of this term coherence? This term, I think you did study in your 12th class in optics chapter कि coherence का मतलब क्या होता है कि two sources of light will be coherent if and only if they are in the same phase. उनका जो phase होगा, they will have same phase, then only you will say कि these sources of light are coherent. तो यहाँ पे भी हम वही टर्म यूज कर रहे हैं, वही फिनोमिना लेजर बीम के अंदर भी अकर हो रहा है कि द वेव्स विच आर आइडेंटिकल इन फेज, कि उनका जो फेज अगर आइडेंटिकल रहेगा एंड डायरेक्शन, उनका जो फेज मींस उनका डायरेक्शन एंड फेज अगर सेम रहेगा, देन ओनली वी विल से कि दीज आर कोहेरेंट वेव्स. तो यहाँ पे जो लेजर बीम है, लेजर बीम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स, कि यहाँ पे जो भी फोटॉन्स एमिट होंगे ड्यूरिंग द लेजर बीम, they will have same energy, same momentum, and they will propagate in same direction. These are the three parameters that will be same uh, for all the consistent photons of the laser beam. That's why we are saying कि आपका जो laser beam है that is highly coherent, कि इसके अंदर आपके पास जितने भी photons emit होंगे उनका same energy रहेगा and they will have same momentum or they will propagate in the same direction. So that's why we are saying that term coherence, कि it has high degree of coherence. Second term थी, second इसका property है that is high intensity. तो किसी भी source of light की intensity को हम कैसे define करते हैं? By using the focus area. कि suppose अगर मैं एक ordinary source of light ले रही हूँ और एक मैं लेजर बीम का सोर्स ले रही हूँ, तो यू कैन सी कि आपका जो लेजर बीम है उसका जो फोकस का जो एरिया होगा दैट विल फोकस्ड ऑन अ स्मॉल एरिया. उसका जो एरिया अगर हम देखेंगे आई से, तो वो भी यू विल विजुअलाइज कि उसका जो एरिया ऑफ फोकस दैट इज स्मॉल और उसका जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेट ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. तो दैट्स वाई यू आर सेइंग कि आपका जो लेजर बीम है दैट इज हाईली फोकस्ड, और कोई भी बीम अगर हाईली फोकस्ड होगा देन ओनली इट विल हैव अ हाई इंटेंसिटी. उसका फोकस ज्यादा है तो उसका इंटेंसिटी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी इज हाईली डायरेक्शनल. तो डायरेक्शनल मीन्स कि देर इज नो स्प्रेडिंग. अगर हम किसी ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट की बात करें लाइक योर इलेक्ट्रिक बल्ब, हम जो बल्ब यूज करते हैं इन अवर डेली लाइफ, तो यू विल सी कि इसके अंदर देर आर लॉट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, कि यहाँ पे जो लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, कि लाइट इज
scattered in ordinary source, light will scatter in different direction. तो scattering हो गया means there is a lot of spreading, कि वहां पे उसका spreading बहुत ज्यादा हो गया है. But in the case of laser, that will travel as a parallel beam for a long distance, कि काफी लंबे डिस्टेंस तक इन टर्म्स ऑफ फ्यू मीटर्स या किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक इट कैन ट्रैवल इन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट विदाउट एनी स्प्रेडिंग. बहुत लंबे डिस्टेंस के बाद उसके अंदर स्प्रेडिंग हमें मिलता है, और वो सब स्प्रेडिंग जो मिलेगा दैट इज वेरी स्मॉल, ऑर्डर ऑफ 1 millimeter per meter. This is the order of angular spreading of the laser beam for very long distance. Small distance पे तो we didn't observe any spreading in the case of laser beam, but if we talk for the long distance तो हमें spreading मिलेगा, और वो जो spreading मिलेगा angular spreading वो भी बहुत कम होगा, और उसका जो order होगा that is a order of 1 mm per meter. तो angular spreading नहीं हो रहा है means it is traveling as a parallel beam of light. तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में ये ट्रैवल करिए मींस यू कैन से इट इज हाईली डायरेक्शनल एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट. एंड नेक्स्ट इज हाईली मोनोक्रोमेसिटी. मोनोक्रोमेसिटी ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्रोमेसिटी. एंड monochromacity means it consists of two words, mono plus chromatic. Mono means it will have a single, and chromatic means wavelength. Monochromatic, you can say a source of light will be monochromatic if it will have a single wavelength, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट होगा उसका सिंगल वेवलेंथ होगा. इट कैन बी एनी वेवलेंथ की 600 भी हो सकता है, 700 नैनोमीटर भी हो सकता है, इट कैन बी 800 भी हो सकता है, बट देयर इज नो रेंज ऑफ वेवलेंथ. उसके अंदर बहुत सारी रेंज ऑफ वेवलेंथ नहीं होंगी, उसमें सिर्फ वी विल हैव अ सिंगल वेवलेंथ. अगर उसके अंदर there is a range of wavelength, then that source of light is said to be polychromatic. Polychromatic में क्या होगा, multiple wavelength, और monochromatic में it will have a single wavelength. तो यहाँ पे जो आपका लेजर बीम है उसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज हाईली मोनोक्रोमेसिटी, कि इसके अंदर मोनोक्रोमेसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक सोर्स. कि अगर हम नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक सोर्स की बात करेंगे तो मोनोक्रोमेटिक तो वो भी है, बट जो लेजर जो बीम है दैट इज हाईली मोनोक्रोमेटिक एज कंपेयर टू नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक सोर्स. और वो भी हम किसकी टर्म में डिफाइन किया है, स्प्रेडिंग की फॉर्म में, कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स के अंदर जो स्प्रेड होगा वो किस रेंज का होगा, 100 नैनोमीटर का होगा. और अगर हम लेजर बीम के अंदर स्प्रेड की बात करेंगे तो वो किस रेंज का होगा, 1 नैनोमीटर का होगा. तो यहाँ पे तो देखिए कितना ऑर्डर का डिफरेंस हो गया है, कि लेजर के अंदर तो स्प्रेडिंग कितनी हो रही है, 1 नैनोमीटर की हो रही है, और यहाँ पे आपका जो ऑर्डिनरी सोर्स, ऑर्डिनरी जो नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक सोर्स उसके अंदर कितना हो रहा है, 100 नैनोमीटर हो रहा है. मींस इट इज 100 टाइम्स लार्जर देन द लेजर सोर्स. कि लेजर सोर्स के अंदर तो बहुत कम स्प्रेडिंग है, और ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक सोर्स के अंदर वी हैव 100 नैनोमीटर स्प्रेडिंग. तो बेस्ड ऑन दिस यू कैन से कि जिसके अंदर स्प्रेडिंग कम होगा मींस दैट विल हैव अ हाई मोनोक्रोमेसिटी. तो बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर यू कैन सी कि आपका जो लेजर है दैट इज हाईली मोनोक्रोमेटिक एज कंपेयर टू नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट. सो these are four important property of the laser beam that makes this laser beam very popular in our daily life. कि it is highly directional, highly monochromacity, highly intense and highly coherent. So because of this important property, it become very popular in our daily life. और there are lot of advantage and application of this laser beam in our daily life that we will discuss in the coming lectures. Ki what is the role of laser in medicine field, what is the role of laser in industry, what is the role of laser in communication. So in every stage of life there are lot of importance of this laser beam. Means there are many application of laser beam in our daily life. This is a picture of this conventional source and laser source. And this conventional source means we are talking about our electric bulb.
जो मैं अभी आपको बार बार एग्जांपल दे रही थी, दैट इज द ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट। जो आप इलेक्ट्रिक बल्ब आप अपने घर पे यूज कर रहे हो, उसका आप एग्जांपल ले सकते हो। और दिस इज योर लेजर बीम। जो मैं अभी हम बार बार इसका इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे, जब मैं प्रॉपर्टी अभी इसका डिस्कस कर रही थी, तो वी आर कंपेयरिंग दिस टू सोर्सेज ऑफ लाइट। तो यू कैन सी कि जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन करते हैं तो दीज फोटोन्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, यू कैन सी लाइक दिस। बट इन द केस ऑफ दिस लेजर सोर्स, दैट इज हाईली फोकस, कि आप यहाँ भी देख रहे हैं कि ये हाईली डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में ही जा रही है। और इसका जो फोकस एरिया है, अगर हम इस फोकस एरिया की बात करें तो ये भी बहुत कम है। तो हाईली फोकस्ड है मीन्स दैट इज हाईली डायरेक्शनल भी होगा, और हाईली डायरेक्शनल होगा मीन्स दैट विल हैव हाई इंटेंसिटी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इंटेंसिटी ऑफ दिस ऑर्डिनरी बल्ब। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कोरेंट, तो यहाँ पे कोरेंस का जो मैंने अभी आपको बताया था कि कोरेंस का मतलब क्या होता है कि दैट विल हैव द सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट को ड्रॉ करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस लाइट वेव्स आर कोरेंट इन नेचर एंड these लाइट्स आर incoherent in nature. So what you can say कि यहाँ पे this is the crust and this is the trough of this light wave. तो ये first light wave है, this is second light wave, means you have number of light waves. And in this image you can see कि सबका crust एक सा है, कि यहाँ पे सबका crust they are coinciding to each other. Similarly अगर हम trough के बारे में बात करेंगे तो they are coinciding to each other, हम एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। मींस crust of each wave match with the crust of another wave and trough of one wave match with the trough of another wave. crust का मतलब क्या है कि जो पार्ट ऊपर उठा हुआ है, और trough का मतलब क्या है कि जो पार्ट डाउन में है। इट इज अ काइंड ऑफ वैली, कि इसके अंदर अप डाउन लाइक इस तरह से हमें ये इमेज दिख रही है। तो जो अप वाला पोर्शन उसको हम crust बोल रहे हैं, एंड जो बॉटम वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड trough. तो इन दिस सोर्स ऑफ लाइट यू कैन सी दैट कि हर एक का crust से मैच हो रहा है, और trough से मैच हो रहा है। बट इफ वी लुक एट दिस पिक्चर यू कैन सी दैट कि यहाँ पे ये इसका trough यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका trough थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, देन ये फर्दर आगे शिफ्ट हो गया है, ये फर्दर बैक चला गया। मीन्स अगर हम एक लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे तो वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम इजिली ड्रॉ कर पा रहे हैं इन द केस ऑफ कोहेरेंट लाइट वेव्स, बट इन द केस ऑफ इनकोहेरेंट लाइट वेव्स वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज द crest of one wave do not match with the crest of another wave. Similarly, trough of this wave do not match with trough of another wave. So this is a way कि you can identify कि which source is coherent source and which source is incoherent source. कई बार आपसे इंटरव्यूज या उसमें भी पूछा जाता है कि ये सोर्स, इस सोर्स को देख के हाउ विल यू से कि ये कोहेरेंट है और ये वाला सोर्स इनकोहेरेंट है। तो वो हम इसी से चेक करते हैं कि अगर crust से मैच हो रहा और trough से मैच हो रहा, then that source is called coherent source. And अगर crust is not match with crust of another wave and trough do not match with the trough of another wave, then you will say कि this is incoherent source. तो अगर हम लेजर बीम यूज करें तो हमें इस तरह का पैटर्न मिलता है, और अगर हम ऑर्डिनरी सोर्स मींस ऑर्डिनरी बल्ब यूज करते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं, तो हमें इस तरह का बिहेवियर मिलता है। दैट्स व्हाई यू कैन से कि आपका जो लेजर है वो एक कोहेरेंट हाईली कोहेरेंट शो करता है, और आपका जो ऑर्डिनरी कन्वेंशनल सोर्स है वो क्या करता है, इनकोहेरेंस लाइट वेव शो करता है। So this is all about the properties of the laser beam that separate it from the ordinary source of light. और वो हमने अभी इमेज की हेल्प से, डायग्राफ की हेल्प से भी हमने इसको विजुअलाइज कर लिया है कि हाउ यू कैन से कि जो हमने अभी फोर प्रॉपर्टीज अभी थ्योरेटिकली डिस्कस की थी, एंड इस स्लाइड के अंदर हम उसको विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं कि हाँ इट्स फाइन कि लेजर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है जो हम विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट व्हाट आर द फिनोमिना रिगार्डिंग द लेजर, कि लेजर एक्शन कैसे होता है। तो मैंने इसकी एब्रिविएशन में भी बताया है कि इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन,
कि स्टिमुलेटेड एमिशन के बेस पे ये वर्क करता है. दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ लेजर, राइट? But before start to discuss the phenomena of stimulated emission, we have to discuss about three interaction processes. कि अगर आपके पास कोई भी रेडिएशन है और वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, then there are three types of processes can take place. First process is which I discussed in the previous class, that was uh, induced absorption, or you can say stimulated absorption. Second, which I discussed in the previous class, that was the spontaneous emission, and next was the stimulated emission. तो यहाँ पे there are two terms, absorption and emission. तो absorption कब होगा? Okay, so this is the actual diagram to understand this term, that is the absorption. So in the absorption, if you look at this diagram, uh, for any if we talk about the energy state of any atom, then there are two types of energy state. This is your ground state of the atom. That will have a lower state, means it is the ground state, and this is the excited state. So ground state has energy E1 and excited state has energy E2, and this is a difference between these two energy state, which is denoted by delta E. Now we are talking about the absorption. तो absorption में क्या होगा कि atoms are present in the ground state. ग्राउंड स्टेट्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो व्हाट विल हैपन कि वी विल इंसिडेंट अ फोटोन. इस ये जो फोटोन है इस एटम के ऊपर हम इंसिडेंट करवाएंगे, एंड देन इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ दिस फोटोन. ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल जंप टू द एक्साइटेड स्टेट, और वो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? जंप हो जाएगा. तो इनिशियली यहाँ पे कितने एटम्स पड़े थे? 4 एटम्स पड़े थे, और जैसे इसने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो एक एटम आपका कहाँ पर रीच हो गया? दैट विल जंप टू द एक्साइटेड स्टेट. और यहाँ पे आपके पास कितने एटम्स रह गए? देयर आर 3 एटम्स आर प्रेजेंट नाउ इन द ग्राउंड स्टेट. सो this is the process before the absorption, and this is the process after the absorption. And this absorption के अंदर हम यहाँ पे एक टर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज द स्टिमुलेटेड. स्टिमुलेटेड का मतलब मैंने पिछली बार भी बताया था कि वी रिक्वायर सम एक्सटर्नल एजेंसी, कि यहाँ पे हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द एब्जॉर्प्शन. और वो एक्सटर्नल एजेंसी यहाँ पे क्या है? दैट इज द इंसिडेंट फोटोन. बिकॉज जब तक हम यहाँ पे इंसिडेंट नहीं जब तक हम इस रेडिएशन को फोल्ड नहीं करवाएंगे तब तक दैट एटम इज नॉट एबल टू जंप टू एक्साइटेड स्टेट. इट नीड्स सम एनर्जी. इसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट. That's why this absorption is called stimulated absorption. So if you want to define this term, so if you can define like a photon of energy h mu, this photon having energy h mu is incident on the atom. इस atom के ऊपर incident हुआ, then the atom which is present in the lower state, it will absorb that incident photon and it become excited. Excited होके कहाँ आ जाएगा? It will jump to the higher energy state. So this process is called absorption. तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें in the form of equation, so how you will write? This is the atom which is present in the ground state. It absorb the photon and it jump to the excited state. तो ये जो atom का स्टार किसको इंडिकेट कर रहा है? It indicates the excited state. अगर यहाँ पे normal atom है, means it is present in the ground state. And अगर हमने यहाँ पे स्टार we are using, means we are indicating the excited state of this atom. So in a ground state, energy of this atom is E1, and this photon is having an energy h mu, and when atom reach to the excited state, then it will have an energy of E2. So you can write this h mu, that is equal to E2 minus E1. This is the energy of that incident photon, right? So this is a mathematical equation to represent the concept of stimulated absorption. Here we can also represent one more parameter, that is the rate of absorption. कि
यहाँ पे absorption हो रहा है, it's fine. If we want to calculate the rate of absorption, so what will be the rate of absorption? So rate of absorption, it is found that कि जो rate of absorption होगा वो मैंने किससे represent किया? Rate means R. Absorption 1 2 का मतलब क्या है कि atom is excited from level 1 to level 2. This is level 1 L1 and this is level 2. तो यहाँ पे मैंने इसके जो सबस्क्रिप्ट में टर्म यूज कर रहा है 1 2 मीन्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कि 1 लेवल से वो जंप कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, इनटू द लेवल 2. And here I am denoting two terms, that is the population of energy level की यहाँ पे जो population होगी एटम की उसको मैं N1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और जो एक्साइटेड स्टेट में जो पॉपुलेशन होगी एटम्स की दैट इज रिप्रेजेंटेड विद N2. तो यहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन के अंदर हम इनिशियली किसकी बात करें? ग्राउंड स्टेट की बात करें, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल N1 की बात करेंगे. तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा? एक तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन का लेवल को मैंने डिनोट किया विद N1. तो दिस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल डिपेंड अपॉन N1, and this will depend upon N1. And second term is that is रेडिएशन, डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन की जो ये फोटोन आपने अमिट करवाया है इसका डेंसिटी कितना है, एंड दैट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय अ टर्म रो. सो यू कैन से कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल, दिस अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. It will depend upon two parameters. First is the N1, that is the population of lower energy level, that is the ground state level, and second is the density. And if we replace this constant of proportionality with some constant, तो यहाँ पे आपका जो constant होगा उसको मैंने represent किया with B12. 1 2 जहां भी हम यूज करेंगे मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्जॉर्प्शन, मीन्स लेवल 1 से लेवल 2 पे आपका एटम जंप कर रहा है. And here this B12 is called, this is a probability of absorption per unit time. इस ये आपका एक constant है, proportionality constant, and this proportionality constant is called probability of the absorption. So this is तो यहाँ पे इस stimulated absorption के फिनोमिना के अंदर हमने दो मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली, एक तो एनर्जी and second what will be the rate of absorption, that is R12. नेक्स्ट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एमिशन. तो स्पॉन्टेनियस वर्ड मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. स्पॉन्टेनियस मींस वी डोंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी, कि विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी वी कैन स्टार्ट अवर प्रोसेस. तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का मतलब तो क्या होगा? वी डोंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी. और एमिशन मींस दैट एटम विल एमिट सम रेडिएशंस, कि आपका एमिशन जहां भी यूज होगा मींस आपका जो एटम होगा for this process to take place, atom has to be in the excited state. क्योंकि emission कब होगा? जब atom higher energy state से come back to the lower energy state, then only it will emit some radiations. तो यहाँ पे initially आपका जो atom होगा that will be in the excited state. और absorption के अंदर क्या होगा? atom initially कहाँ होगा? that will be in the ground state. तो यहाँ पे spontaneous emission की अगर हम बात करेंगे तो अब आपका atom कहाँ होगा initially? That will be present in the excited state. Now what will happen in the spontaneous emission? तो spontaneous emission में क्या हो कि आपका जो atom is present in the excited state, and this excited state has a very small lifetime, कि atom don't want to cannot stay here for a long time. तो इसका जो lifetime होता है that is the order of 10 raised to power minus 8 second. After 10 raised to power minus 8 second, this atom will come back to its initial state. कि आपकी ये जो है ये आपकी ग्राउंड स्टेट है और एटम क्या चाहता है? अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहता है, और इसकी जो एनर्जी है वो कम है एज कंपेयर टू, इसकी एनर्जी ज्यादा है. इट वांट टू कम बैक इट्स ग्राउंड स्टेट. So after 10 raised to power minus 8 second, it will come back to its ground state.
तो इट विल कम ऑटोमेटिकली, क्योंकि वी डोंट रिक्वायर एनी एनर्जी। तो जैसे ये यहाँ से यहाँ वापिस आएगा, देन इट विल emit वन फोटोन हैविंग एनर्जी h mu. तो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन, कि इट इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ एमिशन ऑफ फोटोन, कि यहाँ पे आपका एक फोटोन एमिट होगा लाइक दिस व्हेन एटम ट्रांजिट फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, कि आपका जो एटम ने ट्रांजिशन किया फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। यहाँ पे हमने कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं दी और एटम ने ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन किया है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू lower energy state with the emission of this photon. So that's why we are using a term emission, और एक्सटर्नल एजेंसी यूज नहीं हुई इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्पॉन्टेनियस। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन। एंड दिस डायग्राम describe the phenomena of spontaneous emission. And if we want to represent the mathematical equation of this phenomena, so how you will represent, that will be like initially atom is present in the excited state. So that's why here we are using this asterisk, कि यहाँ पे हमने स्टार को सिंबल यूज किया है। देन after that atom come back to its ground state. ground state में आपका atom आया with the emission of one photon, तो इसने एक फोटोन emit किया। so this is a mathematical equation to indicate the process of spontaneous emission. और अगर यहाँ पे stimulated emission होता तो आपका जो फोटोन है इधर ना लेके हमें फोटोन कहाँ लेना पड़ता है, यहाँ पे लेना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम हमें फोटोन को इंसिडेंट करवाना पड़ता, उसको स्टिमुलेट करवाना पड़ता। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पॉन्टेनियस, तो यहाँ पे वी डोंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी, दैट्स व्हाई वी डोंट नीड एनी एटम टू इंसर्ट हियर। एंड यहाँ पे आपके पास ओनली क्या होगा, एक फोटोन एमिट होगा। सो दिस इज वन मैथमेटिकल इक्वेशन। एंड सेकेंड, अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन डिफाइन करना चाहे इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, कि आपका जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है उसका कितना रेट होगा, तो रेट इज इंडिकेट डिनोटिंग बाय कैपिटल आर। एंड इन दिस केस आई एम यूजिंग अ सबस्क्रिप्ट दैट इज 2 1। 2 1 का मतलब क्या होगा कि आपका लेवल 2 से लेवल 1 पे आ रहा है। लेवल 2 इसका इनिशियल स्टेट होगा और आपका जो लेवल 1 होगा दैट विल बी द फाइनल स्टेज। और जहाँ पे मैंने पीछे वाली स्लाइड के अंदर बात करी थी, तो वहां पे सबस्क्रिप्ट में क्या था, 1 2 मीन्स आपका जो एटम है दैट इज जंपिंग फ्रॉम 1 to 2। तो वहां पे मैंने यहाँ पे 1 लिखा था एंड यहाँ पे क्या लिखा था, 2 लिखा था। These notation are very important because based on these notation you are able to identify the type of process. अगर यहाँ पे मैं 1 2 लिख दूंगी तो means we are talking about the absorption, और अगर मैं 2 1 लिख रही हूँ तो means we are talking about the emission. एमिशन में क्या होगा कि लेवल 2 से लेवल 1 पे आ रहा है, और अगर मैं 1 2 लिखूंगी तो मीन्स लेवल 1 से लेवल 2 में जा रहा है, आपका एटम का जो ट्रांजिशन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो दिस इज द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। सो ऑन विच पैरामीटर इट विल डिपेंड, ये किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एक्साइटेड स्टेट। और जो एक्साइटेड स्टेट का जो स्ट्रेंथ है वो मैंने कितना बताया था, आपका N2 बताया था, और जो आपका ग्राउंड स्टेट का जो पॉपुलेशन है दैट इज N1। तो फॉर द एमिशन इट डिपेंड्स अपॉन N2, N2 के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल एजेंसी, ये जो प्रोसेस वो स्पॉन्टेनियसली हो रही है तो वी डोंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी, तो वो इंसिडेंट फोटोन की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन अ सिंगल पैरामीटर दैट इज N2। तो यू कैन से कि अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करोगे तो यू विल गेट A21 into N2 एंड दिस A21 इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जैसे हमने वहां भी एक प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो निकाला था दैट वाज द B21 B12। तो यहाँ भी आपके पास क्या रहेगा, दैट इज A21, ये आपका एक प्रोबेबिलिटी रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पॉन्टेनियस एमिशन पर यूनिट टाइम। तो ये आपका क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया। तो ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है एंड दिस इज द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये सेकेंड प्रोसेस थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड
प्रोसेस दैट इज द स्टिमुलेटेड एमिशन। सभी को समझ आ रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. एनी डाउट टिल नाउ? No, ma'am. No, ma'am. ओके, ऑल राइट, तो आई एम कंटिन्यूइंग। तो थर्ड जो आपका इंटरेक्शन प्रोसेस है दैट इज अ स्टिमुलेटेड एमिशन। और मैंने आपको बताया भी है कि स्टिमुलेटेड एमिशन इज द प्रिंसिपल ऑफ लेजर बीम, कि आपका जो लेजर है वो किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। दिस इटसेल्फ लाइज इन इट्स एब्रीविएशन ऑफ द लेजर। अगर हम लेजर को एब्रीवेट कर रहे हैं तो भी उसके अंदर टर्म आ रहा है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द स्टिमुलेटेड वर्ड एंड एमिशन। ये दोनों वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टिमुलेटेड का मतलब क्या हो गया है कि वी रिक्वायर सम एक्सटर्नल एजेंसी की। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इस एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी जो हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि वी रिक्वायर सम एक्सटर्नल एजेंसी। और एमिशन का मतलब क्या होगा कि आपका जो एटम एक्साइटेड स्टेट में पड़ा है एंड इट वांट टू कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट। तो इसका डेफिनेशन इस डायग्राम से वेरी बहुत क्लियर हो पा रहा है कि एटम को हमें जंप कम बैक लाना है, वापस लाना है फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट with the help of this external agency. So if we define this term, so how you will define? It is a phenomena, it is the emission of the photon when an atom transit, उसका जो एटम का ट्रांजिशन होगा from higher to higher energy state to lower energy state. So this E2 is the higher energy state, that is the excited state, and E1 is the ground state, that is the lower energy state. तो आपका जो एटम का ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है? From higher energy state to lower energy state under the influence of this external agency, and you can say this is the external photon. तो यहाँ पे हमने एक external photon उसको दिया. This is the external agency which we are providing to this photon कि वो वो transition कर पाए अपना excited state से ground state में आ पाए. अगर हम इसको energy नहीं देंगे तो ये आपका जो atom है it can never come back to its ground state. तो हमें इसको कुछ energy देना पड़ेगा in terms of some radiations. तो जैसे हमने इसको energy दिया तो ये अपनी ground state में आ गया. और एमिशन है तो इट विल एमिट सम रेडिएशंस. तो यहाँ पे ये क्या करेगा? एक अनदर फोटोन एमिट करेगा. तो एट द एंड वी विल हैव द टू फोटोन्स. एक फोटोन तो हमारा इंसिडेंट फोटोन था और एक फोटोन जब इसने ट्रांजिशन किया फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट वो हमारे पास फोटोन. तो हमें एट द एंड आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट द टू फोटोन्स. इनिशियली हम यू कैन से इनपुट में हमने कितना फोटोन दिया? वी आर गिविंग वन फोटोन. और आउटपुट में हमें कितने फोटोन मिलेंगे? टू फोटोन मिलेंगे. एंड इन फोटोन्स का प्रॉपर्टी क्या होगा कि दे विल बी कोहेरेंट. अब अगर आप इसको देख पा रहे हैं इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट से मैच हो रहा है और इसका ट्रफ इसके ट्रफ से मैच हो रहा है. तो यू कैन से कि ये दोनों जो फोटोन होंगे दे आर हाईली कोहेरेंट. कि मीन्स यहाँ पे जो बीम बन गई है वो आपकी क्या बन गई है? हाईली कोहेरेंट बीम बन गई है. और हाईली कोहेरेंट बीम को हम क्या बोलेंगे? मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजर बीम. तो यहाँ पे हमारा लेजर प्रोड्यूस हो गया है कि लेजर एक्शन हो गया है. तो अगर हम इसको थ्योरेटिकली समझना चाहें तो यहाँ पे दिए जाता पॉइंट्स कि आपका जो एटम है वो कहाँ पे है? ऑलरेडी इन द एक्साइटेड स्टेट, राइट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस पॉइंट के अंदर कि एटम दिस फोटोन जिसका एनर्जी h म्यू है इंटरेक्ट विद दिस एटम इन द एक्साइटेड स्टेट. इस एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड दिस फोटोन ट्रिगर दिस एक्साइटेड एटम which is present in the higher energy level E2 to ट्रांजिट टू द लोअर एनर्जी लेवल. कि ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और इसको फोर्स करेगा कि तू नीचे आ. कि यू वांट ही फोर्स्ड टू कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट. तो उसने उसको ट्रिगर किया एक्साइटेड एटम को फॉर द ट्रांजिशन टू द लोअर एनर्जी लेवल. और फिर क्या होगा? एट द रिजल्ट वी विल गेट द एमिशन ऑफ अनदर फोटोन. हमें दूसरा फोटोन मिलेगा और उसका एनर्जी भी क्या रहेगा? सेम एनर्जी रहेगा. तो मीन्स वी हैव टू फोटोन. एक तो इंसिडेंट फोटोन, दिस इज द इंसिडेंट फोटोन, or this is the emitted photon. They have same phase, same energy and same direction of movement. So you can say कि these are the property of coherent beam. ये तीनों ही पैरामीटर सेम है, means we are talking about the coherence. So this kind of emission is responsible for the laser action. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा laser action हो गया है. एंड अगर यहाँ पे हम इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना चाहें दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द दिस स्लाइड.
तो यहाँ पे इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगा वो कैसे लिखेंगे? दैट इज photon plus atom star, because atom is present in the excited state. This is in the left side, और right side में आपका क्या आ जाएगा? एटम ग्राउंड स्टेट में आ गया प्लस 2 फोटोन। वहां पे यहाँ पे जैसे आपका 1 फोटोन था, यहाँ पे इसी इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करना चाहें स्टिमुलेटेड के अंदर, तो यहाँ पे एटम स्टार के साथ क्या ऐड हो जाएगा? फोटोन ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर इस एक्साइटेड एटम को क्या दे रहे हैं? एक फोटोन भी दे रहे हैं, फोटोन के साथ ट्रिगर करवा रहे हैं। और राइट साइड के अंदर हमें क्या मिल जाएगा? एटम प्लस यहाँ पे 2 फोटोन हो जाएंगे, बिकॉज एक तो आपका इंसिडेंट फोटोन हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा? एमिटेड फोटोन। तो एट द एंड वी विल गेट द 2 फोटोन्स। तो ये वाली इक्वेशन आपकी मॉडिफाई हो जाएगी, और मॉडिफाई होके क्या बन जाएगी? एटम स्टार प्लस फोटोन, दैट इज इक्वल टू एटम प्लस 2 फोटोन इन द केस ऑफ दिस स्टिमुलेटेड एमिशन। वो यहाँ पे मिस हो गई है, so that's why I told you verbally. And if we write the rate of stimulated emission, so how you will write? So again it will be this rate will be this rate is denoted by R, and emission है तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में अगेन आपके पास क्या आ जाएगा? 2 1। 2 1 का मतलब क्या हो गया? मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एमिशन की हायर एक्साइटेड स्टेट से एटम वांट्स टू कम बैक टू द लेवल 1। तो दिस रेट विल डिपेंड अपॉन अगेन 2 पैरामीटर। पहला तो जो फर्स्ट पैरामीटर होगा दैट विल बी द डेंस पॉपुलेशन ऑफ द लेवल। और पॉपुलेशन कौन से लेवल की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दिस लेवल 2, दैट इज द एक्साइटेड स्टेट लेवल। तो n2 इसका पॉपुलेशन है, तो इट विल डिपेंड अपॉन दिस n2। एंड सेकेंड टर्म किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी ऑफ दिस इंसिडेंट फोटोन। तो उसका डेंसिटी हमने किसे डिनोट किया है? रो से, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द inducing or you can say incident photon. So on these 2 parameters this rate will depend, and if we remove this constant of proportionality then it will replace by B21. So B is the constant of proportionality, and here यहाँ पे हमने क्या लगाया? 2 1 लगाया है, means we are talking about the emission, and this constant of proportionality is called probability of the emission. This is called probability of the emission per unit time. तो तीनों के अंदर हमने अभी तक we talk about 3 interaction processes. First was the stimulated absorption, second is the spontaneous emission, और third is the stimulated emission. ये तीनों processes हमने discuss की theoretically with the help of diagram and with the help of mathematical equation. और mathematical equation में हमने इसका mathematical equation भी निकाला, और इन तीनों equations के help से हमने rate निकाला of different interaction process की what is the rate of stimulated emission, what is the rate of spontaneous emission, and what is the rate of stimulated absorption. तो ये तीनों processes are very important when this radiation try to interact with matter. तो इनमें से कोई भी तीनों में से एक प्रोसेस अकर होती है, और लेजर एक्शन के लिए हमें कौन सी प्रोसेस चाहिए होती है? दैट इज द फिनोमिना ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन. Now next concept is कि there are some basic terms to understand the working of laser. कि in the coming lectures we will talk about some different types of laser which are available in the market, like आपका हीलियम नियॉन लेजर हो गया, रूबी लेजर हो गया, और केमिकल लेजर, डाई लेजर, CO2 laser. So there are so many lasers are available in the market, but to understand the construction and working of these laser we need to know some basic concept. And what are these basic concepts? Are first is the population inversion, second is the lifetime, third is the metastable state, and next is the lasing action. These are the 4 points, these are the 4 basic terms which we need to know about the laser. So population inversion,
तो यहाँ पे पॉपुलेशन को इन्वर्ट किया गया है कि जो आपके पास इनिशियली थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में जो उसका स्ट्रेंथ होगा दैट बिकम इन्वर्टेड। तो इसको यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है कि इट इज अ स्टेट ऑफ अचीविंग more number of atoms in the excited state as compared to ground state, and this is very essential condition for producing the laser action. कई बार आपका किसी प्रैक्टिकल एग्जाम में या इंटरव्यू पूछा जाता है कि आपका जो लेजर के लिए सबसे मैंडेटरी कंडीशन क्या है, तो दिस पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अ मैंडेटरी कंडीशन फॉर द लेजर एक्शन। की पॉपुलेशन इन्वर्जन जब तक अचीव नहीं होगा तब तक वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द लेजर बीम। सो इट इज अ वेरी मैंडेटरी कंडीशन फॉर द प्रोड्यूसिंग द लेजर बीम। तो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन में क्या बताया है कि आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो with the help of a diagram you can define. Just I am sharing one more diagram to understand the concept. Yes. तो अभी दिख रहा है आपको ये ऑप्टिकल पंपिंग दिस इमेज? आर यू एबल टू सी? सॉरी, just a minute. Just a minute, I want to share one more file. Just wait for 2 minutes. I am trying to open that image of population inversion. ओके, तो अभी आपको ये ऑप्टिकल पंपिंग का इमेज दिख रहा होगा। Yes, ma'am. तो देर आर थ्री इमेजेस, देर आर थ्री इमेजेस इन दिस फर्स्ट इमेज। ये क्या आ रहा है? ओके, तो ये जो आपको इमेज दिख रहा है दैट इज अबाउट द जिस पे ऑप्टिकल पंपिंग लिखा हुआ है। तो देर आर थ्री पिक्चर, पिक्चर 1, पिक्चर 2 एंड पिक्चर 3। ये सभी को दिख रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, दिख रहा है ये वाला? ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे यू आर एबल टू सी कि जो आपका देर आर थ्री एनर्जी स्टेट। दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज द मैटर स्टेबल स्टेट। ये आपने सुना भी होगा कि जो आपका एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है, दैट इज अ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेकेंड। एंड एटम कैन नॉट स्टे हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आफ्टर 10⁻8 सेकेंड दैट एटम हैज टू कम बैक। ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वापिस आएगा, और वो कहाँ पे आएगा? दिस मेटा स्टेबल स्टेट में आएगा। और मेटा स्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम है
that is large as compared to lifetime of this excited state. और ये जो metastable state इसका जो lifetime होता है वो कितना होता है? That is the order of 10 raised to power minus 3 second. और इसका जो lifetime होता है that is the order of 10 raised to power minus 8 second. तो इनिशियली आपका जब हम बात करते हैं तो आपके जो एटम सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? एटम्स आर मोस्ट ऑफ द एटम आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, क्योंकि इट इज अ लो एनर्जी स्टेट एंड इट इज वेरी स्टेबल. और हर कोई क्या चाहता है कि स्टेबल चाहता है, कि स्टेबिलिटी चाहता है. तो मोस्ट ऑफ द एटम स्टे हियर. तो यहाँ पे सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे 5 एटम्स आर प्रेजेंट हियर, और इस स्टेट के अंदर सबसे कम एटम रहेंगे क्योंकि एटम यहाँ बहुत लंबे टाइम तक स्टे नहीं कर पाते. तो यहाँ पे 2 एटम्स प्रेजेंट, और यहाँ पे आपके कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं. और सबसे ज्यादा एटम कहाँ प्रेजेंट है? ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है. अब what we are giving, we are falling some radiations to these photon, these atoms. तो हमने इसके ऊपर कुछ रेडिएशंस, कुछ फोटोन्स को फॉल करवाया. तो इन्होंने इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, तो इनको एनर्जी मिल गई एंड दे स्टार्ट टू जंप. और वो जंप करके कहाँ पहुंच गए? यहाँ पहुंच गए, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए. पहले यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 2 थे. तो अब जैसे इनको एनर्जी मिला, हमने 3 रेडिएशंस दिया तो 3 एटम्स को एनर्जी मिला एंड दे जंप टू हियर. तो अब यहाँ पे सेकंड फिगर में क्या होगा कि देर आर इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो गया और यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो गया? कम हो गया है. इनिशियली पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा था? ग्राउंड स्टेट में. और अब हमारे पास एक्साइटेड स्टेट के अंदर पॉपुलेशन बढ़ गया है और ग्राउंड स्टेट के अंदर पॉपुलेशन क्या हो गया है? कम हो गया है. तो व्हाट आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे आफ्टर 10⁸ सेकेंड एटम स्टार्ट टू कम बैक, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत लंबे टाइम तक स्टे नहीं कर पाते और 10⁸ सेकेंड इज वेरी स्मॉल टाइम. तो आफ्टर 10⁸ सेकेंड दे स्टार्ट टू कम बैक एट दिस मेटास्टेबल स्टेट. तो सारे के सारे एटम्स यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके एक्साइटेड स्टेट के अंदर बहुत कम एटम रह जाएंगे और ग्राउंड स्टेट के अंदर तो वैसे ही एटम कम है क्योंकि इन्होंने सबने एनर्जी लेके जंप कर लिया था. तो मींस पॉपुलेशन सबसे ज्यादा आपके पास कहाँ आ गई है? मेटास्टेबल स्टेट के अंदर आ गई है. इनिशियली पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ थी? ग्राउंड स्टेट में थी. थर्मल यू कैन से कि नॉर्मली हमारे पास पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ग्राउंड स्टेट में होती है. बट जैसे जैसे ये तीनों प्रोसेसेस हुए तो हमारे पास पॉपुलेशन कहाँ पे बढ़ गई है? मेटास्टेबल स्टेट में हो गई है. और ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारी पॉपुलेशन क्या हो गई है? कम हो गई है. तो यू कैन सी हमारी पॉपुलेशन इन्वर्ट हो गई है. ये जो वर्ड है पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो यहाँ पे मीन्स पॉपुलेशन इन्वर्ट हो गई. यहाँ पे तो कम हो गया है और यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो गया. मीन्स पॉपुलेशन का क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया है. और जैसे ये प्रोसेस, ये वाली कंडीशन अचीव हो जाएगी तो हमारे क्या होंगे कि लेजर एक्शन होगा. तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन दोनों लेवल्स के बीच में आपका क्या हो गया? पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन हो गया है. और जिन दो लेवल्स के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन होगा उन दोनों लेवल्स के बीच में आपका क्या होगा? लेजर एक्शन होगा. अगर मैं आपको बोलूं कि लेजर एक्शन यहाँ पे कौन कौन से दो लेवल के बीच में होगा, तो दैट लेजर एक्शन विल बी टेक प्लेस बिटवीन लेवल E1 एंड लेवल E2. अगर मैं E1 और E3 के बीच में कहूंगी तो नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन है ही नहीं, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है और इसकी पॉपुलेशन कम है. तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है. बट लेवल E1 और E2 के बीच में हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो रहा है. तो हमें हमें लेजर एक्शन कहाँ मिलेगा? इन दोनों लेवल्स के बीच में मिलेगा. और वो कैसे मिलेगा कि यहाँ पे हम क्या करवाएंगे? अब ये जो एटम्स यहाँ पे पड़े हैं इनको हम कुछ एनर्जी देंगे क्योंकि ये लंबे टाइम तक यहाँ पड़े रह सकते हैं बिकॉज इसका लाइफ टाइम ज्यादा है. तो इनको नीचे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ फोटोन्स इनको देने पड़ेंगे, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. और जैसे हम इनको एनर्जी देंगे तो वो क्या करेंगे? इस स्टेट से इस नीचे वाली स्टेट में आएंगे विद द एमिशन ऑफ सम रेडिएशन. और जब वो रेडिएशन को एमिट करेंगे तो वो रेडिएशन क्या होगी? दिस इज कॉल्ड लेजर बीम. वो आपकी लेजर रेडिएशन होंगी. तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन इन्वर्जन कि इनिशियली हमारे पास पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा थी बट ड्यूरिंग द लेजर एक्शन आपकी पॉपुलेशन कौन से लेवल में ज्यादा हो जाएगी? मेटास्टेबल लेवल में ज्यादा हो जाएगी. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन्वर्जन. राइट नाउ अभी हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स के हम बात कर रहे थे. So we are talking about 3 points here. First was the population inversion.
समझ आ गया कि हाउ टू डिफाइन द पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो यहाँ पे मैंने अभी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई ट्राई टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन कि मीन्स the number of atoms in excited state is large as compared to ground state. So I try to explain with the help of this diagram, and this is very essential condition for producing the laser beam, right? And the next lifetime के बारे में हमने बात की कि lifetime जो excited state का जो lifetime है, it is very limited lifetime. इसको हम define करेंगे तो this is a limited time for which atoms stay here, and it is of in the range of nanosecond, that is the order of 10 to power -8 second. फिर हमने मेटास्टेबल स्टेट की बात की। मेटास्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम होगा दैट इज वेरी लार्ज, order of 10 to power -3 to 10 to power -2 second, and it helps to achieve the population inversion, because जब तक आपके पास मेटास्टेबल स्टेट नहीं होगी तब तक we are not able to achieve the population inversion. So it is very important state to achieve the population inversion. And lasing action क्या होगा कि lasing action में हम क्या करेंगे कि photons को stimulate करवाएंगे atoms को, and after establishing the population inversion, वो हम यहाँ से देख सकते हैं next slide में you can see कि यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे अचीव हो गया, और जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे अचीव हो जाएगा तो हम इन एटम्स को क्या करेंगे, कुछ एनर्जी देंगे, और जैसे एनर्जी देंगे तो दे विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन जो आएंगे उसी से हमारा क्या बनेगा, दिस इज द लेजर एक्शन. तो बेसिकली दिस डायग्राम डिफाइन लेजिंग एक्शन कि इनिशियली आपका जो एटम था दैट इनिशियली आपका जो एटम था वो ग्राउंड स्टेट में था, देन इट गोज टू द एक्साइटेड स्टेट बाय द एब्जॉर्प्शन, देन with the phenomena of spontaneous energy emission it directly come back to its metastable state automatically without any external agency, and from this metastable state it will come back to ground state by stimulated emission process, और finally हमें क्या मिल जाएगा, we will get the laser beam in the output. तो now I am quoting. तो अभी मैं आज की क्लास क्लोज करती हूँ. तो इन द टुडे क्लास व्हाट वी डिस्कस, हमने लेजर के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया. देन वी डिस्कस अबाउट 3 इंटरेक्शन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एंड उसके बाद हमने 4 बेसिक टर्म्स की बात की विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर.